اگلے مہمان خصوصی کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد خورشید عالم صابری حفظہ اللہ تعالی۔ تو قبلہ علامہ صاحب کافی دیر سے منتظر تھے، تو ہم بھی انتظار میں تھے کہ حضرت کا بیان ذیشان ہم بھی سنیں، اور خاص کر فضائل و مناقب سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں حضرت کے ملفوظات عالیہ سے مستفیض ہوں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حضور خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ تو انشاءاللہ بلا تاخیر ہم آگے چلتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ شروع فرما دیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ حضرت بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایتی مکرم و محترم پروگرام کے میزبان گرامی قدر جناب حضرت علامہ شاہد علی صاحب دامت برکاتکم، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا اس انتہائی پیارے پروگرام کو ارینج کرنے پر، اس کی ہوسٹنگ اور میزبانی کرنے پر، اور اس کے ساتھ ہی محترم المقام استاذ العلماء حضرت علامہ محمد اسلم بدیالوی صاحب دامت برکاتہم کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور ان کے لیے دعائیہ کلمات بھی پیش کروں گا کہ اللہ پاک ان کی مساعی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے، جو بھی حمدللہ تعالی ہر اہم موقع پر مسلک حق اہل السنہ کے عوام کے لیے، خواص کے لیے اہتمام فرماتے ہیں کہ ان کو موقع بموقع کامل اور صحیح رہنمائی کی طرف ان کی ہدایت کا سامان کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ان کے علم و عمل میں بھی اللہ پاک برکات فرمائے بحمدللہ تعالی۔ پروگرام میں ہمارے بڑے بڑے جید علماء کرام ہماری جماعت کے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر ملفوظات اور اپنی معروضات کو حوالہ ناظرین و قارئین فرمایا ہے۔ تو میں بھی جیسے آپ نے ڈیوٹی لگائی اسی کی مناسبت سے میں یہ بات جو آپ نے میرے ذمہ موضوع دیا تھا وہ تھا جنراسٹی آف سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ the third caliph of اسلام۔ تو اسی مناسبت سے میں چند معروضات عرض کرنا چاہوں گا بلا تمہید، چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں نے خطبہ بھی مختصر ہی کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمام کائنات صحابہ کے نفوس قدسیہ میں سے وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ہی وہ لفظ آ گیا جو ٹاپک مجھے دیا گیا، جس کا مطلب ہی سخاوت بنتا ہے، جنراسٹی بنتا ہے، جودت بنتا ہے، کرم بنتا ہے۔ تو یہ جو کمال درجہ کی ایک فضیلت خاص ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر بہت ساری خوبیوں اور خصائل عظیمہ کی طرح یہ بھی آپ کا تخصص ہے، انڈیویجویلٹی ہے ان کی، حضرت عثمان پاک کی، کہ ان کے نام کے ساتھ ہی ایسا لفظ لگ گیا کہ اس لفظ نے ہی ان کے اس کمال خاص کو واضح کر دیا، اور اس انداز سے واضح کیا کہ ہر زبان زد عام ہو گیا یہ لفظ۔ خاص تو جانتے ہی ہیں، مگر عام بندہ بھی جب آپ کا عثمان نام لیتا ہے تو حضرت عثمان غنی، یعنی بہت مختصر ترین بھی نام کی سعادت حاصل کی جائے تو وہ لفظ آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ میں غنا کا بہت بڑا پہلو موجود تھا، سخاوت کا بہت بڑا ملکہ اللہ نے آپ کو دیا تھا، بڑا دل، کھلا سینہ، کھلی عطاؤں والا ہاتھ، اور سرکار کی امت اور سرکار پاک کی بارگاہ کی خدمت کے عظیم مظاہر جو آپ کو ملے اور آپ کے حصے میں آئے وہ آپ کا ہی خاصہ ہے۔
हजरत इवन के दीगर सहाबा पाक के ज़माना में भी, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना अक़दस में तो ये बहुत सारे मामलात वाज़े हैं, मगर उसके बाद दीगर खुलफा मसलन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो खलीफा अव्वल हैं, उनके ज़माने में शाम से एक साइल आया, और वो शाम से साइल आया तो साफ ज़ाहिर है उसने अमीर की बारगाह में ही, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पहुंचना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की कि मैं अमीर मोहतरम, आप अमीर मोहतरम भी हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन भी हैं, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं गनी हूँ, आप अमीर हैं, मैं फ़कीर हूँ, आप अमीर हैं, सॉरी, तो आप मुझे कुछ अता करें, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं शाम से चल के आया हूँ, एक उम्मीद लेकर आया हूँ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अपने घर में तशरीफ फरमा उनको किया, और साथ हुए तशरीफ फरमा, बिठाया उनको और सामने खजूरें पेश की। तो जब उन्होंने अपने आने का मकसद बयान किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि आजकल सूरत हाल ऐसी है कि मैं खुद भी 3 दिन से खजूरों पे गुजारा कर रहा हूँ, खाने पीने का सिलसिला भी इस हद तक ज़ाहिरन तंगी का शिकार है, तो इसलिए शायद मैं आपके सवाल का जवाब वो ना दे सकूं जो जिसकी आपको तवक्को है। तो साहिल ने कहा, जी फिर अमीरुल मोमिनीन तो आप है, मैं और कहाँ जाऊं? तो आपने फरमाया, तुम ऐसा करो, हजरत उस्मान के पास चले जाओ, वो तुम्हारी जरूरत को पूरा कर देंगे, तुम्हारी मुश्किल को हल कर देंगे, तुम्हारी हाजत को पूरा कर देंगे और तुम्हारी जरूरत का सामान कर देंगे। तो उसने थोड़ा हैरत के अंदाज में पूछा कि वो तो मुझे नहीं जानते, ना ही मैं उनसे वाकिफ हूं, चूंकि मैं शाम से आया हूं, तो क्या उनको आपका हवाला दूं? फरमा, नहीं, हवाला की जरूरत नहीं है, उनको आपका मुसलमान होना पता चल जाना ही जरूरी है, तो अगर वो पता चल गया तो उसके बाद आपको मेरे हवाला की जरूरत नहीं रहेगी, वो खुद ब खुद ही आपका मसला हल करेंगे। तो खैर ये शामी साइल गया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचा। जब इसने दरवाजे पर दस्तक देना चाही तो अंदर से आवाज आ रही थी। हज़रत उस्मान अपने बच्चों को फरमा रहे थे कि तुम खाने पीने में एहतियात नहीं करते हो और इसराफ की तरफ तुम्हारा मामला जाता मुझे नजर आता है, और इसमें हमें गिरफ्त करनी चाहिए, गौर करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। तुम शहद दूध में डाल के पीते हो, तो 2 मिठास को जमा करने की कोई जरूरत नहीं, या शहद यानी हनी इस्तेमाल करो या दूध इस्तेमाल करो। ये आवाज साहिल ने भी सुनी, बात अपने घर वालों से कहते हुए हजरत उस्मान को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उसने दिल में सोचा कि जो अपने घर वालों से इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अगर उनके पास बहुत सारी फरावानी है देने के लिए, तो फिर वो ये बात तो ना करते अपने घर वालों से। बहरहाल ये वो सोच ही रहे थे, दरवाजा नाक किया, अंदर से हज़रत उस्मान तशरीफ ले आए। और उस्मान गनी ने जब तशरीफ लाए तो पहला जुमला ही उनका ये था कि मरहबा, मैं आपको मरहबा कहता हूँ, सलाम वालेकुम। तो साहब कहा, उसका सलाम का जवाब मिला। तो आपने फरमाया कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं घर वालों से थोड़ी बात कर रहा था, तो आने में 1 आध मिनट की ताखीर हो गई। तो उसने कहा, कोई बात नहीं जी, ये ताखीर 1 आध मिनट की क्या, वो तो आने में इतना वक्त लग ही जाता है। बहरहाल उनको अंदर जाके बिठाया और बिठाकर सबसे पहले दूध और शहद पेश किया, यानी दूध के अंदर हनी मिला हुआ पेश फरमाया। फिर खजूर का हलवा पेश फरमाया। खजूर का हलवा उलमाए किराम जानते हैं अरब की बड़ी महबूब और मरगूब गिजा है। खजूर का हलवा पेश फरमाया और उससे पहले दूध और हनी पेश फरमाई, मिला हुआ दूध। तो वो सोचने लगे कि ये क्या बात है कि घर वालों को तो ये कह रहे थे और वो मेरे सामने वो 3 किस्म की मिठाइयों का यानी स्वीट्स का इंतजाम कर दिया। दूध भी मीठा है, हनी भी मीठी है, खजूर का हलवा भी मीठा है। तो घर में तो कह रहे थे कि एक मीठी चीज पे गुजारा किया जाए और किफायत शारी से काम लिया जाए। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके चेहरे के तासुरात और सवाल को पढ़ा और फरमाने लगे, वो नसीहत जो कर रहा था वो घर वालों को कर रहा था, क्योंकि मेरा जो माल है वो सारा माल उस अंदाज से मेरा नहीं है, हुजूर की उम्मत के लिए मैंने रखा हुआ है। घर वालों को किफायत शारी की तालीम देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की उम्मत और उम्मत के मेहमानों की खिदमत करना उसकी मुझे इजाजत है, क्योंकि मेहमान की जितनी बढ़ चढ़ के
خدمت کی جائے تو وہ زیادہ شریعت مطہرہ اور سرکار کی بارگاہ میں یہ عمل پسندیدہ ہے، لہٰذا میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو کھانا جب وہ فارغ ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ اب بتائیے آپ کیسے تشریف لائے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں اس انداز سے آیا ہوں اور میں نے قرض ہے میرے اوپر، اس قرض کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ آگے مزید بیان کرنا چاہ رہا تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرے کھانے کے دوران ہی میں نے اہتمام کر دیا ہے، اور وہ باہر اونٹ بھی تیار ہے، اس پر آپ کے کپڑوں کا انتظام، آپ کی اور آپ کی فیملی کا بھی انتظام ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، اور تیرے جو قرض ہے اس کا بھی انتظام ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضور آپ یہ کتنا اہتمام آپ نے کیا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا قرض پورا ہو کہ نہ ہو۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 6000 کا اہتمام کر دیا ہے، اور کھانا پینا اور باقی سب اس کے علاوہ ہے، اور وہ سامان اونٹ پر تیار ہے، آپ اونٹ کو پکڑو، سوار ہو اور سامان بھی لے جاؤ، اور خود بھی خوشی خوشی گھر کی طرف واپس پلٹو۔ اس نے کہا حضور میری ضرورت تو 3000 کی تھی، آپ نے 6000 کر دیا۔ فرمایا ہاں ہمارے پاس جو آتا ہے ہم اپنی ہمت کے مطابق اس کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا حضور آپ یہ جو اونٹ ہے یہ واپس کرنے کون آئے گا؟ فرمایا واپس کس نے کہا تم کرنے آنا، ہم نے دیا ہی اس لیے ہے کہ تم یہ اونٹ بھی اپنے پاس رکھنا، تیری سواری کے کام آئے گا، جتنا تو نے ہم سے ریکویسٹ کیا ہے ہم نے اتنا ہی نہیں دیا ہے، تم نے ریکویسٹ اپنے توقع اپنی مشاہدہ کی بنیاد پر کی ہے یا ضرورت کے حوالے سے کی ہے، ہم نے عطا اپنے مطابق کی ہے جو ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ تو بہرحال وہ سائل اس انداز سے حیران ہوتا ہوا باہر نکلا، اور باہر نکلتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یہ کہا، وہ چلتا ہوئے جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں ابو بکر، حضرت ابو بکر نے بھیجا تھا اور اس کے مطابق تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو نام ہی نہیں لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، انہوں نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اس بات کو تم رہنے دو، لیکن تمہارا مسئلہ ابو بکر صدیق نے بھیجا تھا وہ حل ہو گیا۔ اور اس پر بھی علماء نے فرمایا کہ یہ بات بھی آپ نے اس لیے کی کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ میں نے ابو بکر صدیق کا بتایا کیوں نہیں، یا مجھے بتانا چاہیے تھا، ایک ذہن میں ہوتا ہے، وہ چاہتا بھی یہ تھا کہ ان کا ریفرنس بھی درمیان میں آئے کیونکہ انہوں نے مجھے بھیجا۔ تو اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ در سخاوت اور در جودت ہمیشہ کھلا رہتا، اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے۔ اور پھر اس نے شکریہ ادا کیا تو آپ نے فرمایا شکریہ میرا تو نہیں، شکریہ ادا کرنا تو پھر حضرت ابو بکر کا کرو جنہوں نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو گویا اس کو اپنے لیے یعنی شکریہ کے کہنے کے طور پر بھی آپ نے اس کو زحمت دینا پسند نہیں فرمایا۔ پھر بہت بڑی مشہور بات ہے وہ بھی کہ جب آپ نے حضرت آقا کائنات، آقا نعمت، سرکار دو جہاں، حضرت صاحب ختمی مرتبت حضرت آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعوت نامہ پیش کیا اور عرض کی حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے کاشانہ میں تشریف فرما ہوں اور مجھے اپنے قدوم میمنت لزوم سے میرے گھر اور میرے کاشانہ کو منور و معطر فرمائیں، فیض یاب فرمائیں، زیارت کے سے بھی مالا مال فرمائیں، اور اپنے وجود اقدس کی تشریف آوری سے بھی میرے گھر کو منور و معمر فرمائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا، جو آپ کا طریقہ ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حالانکہ جس طرح ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو بھی بات ہو تو خواہ اس بات کی مخالفت کرنے کا ایک ہیلا بناتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ جی کسی غریب کو دے دیں، ضرورت مند کو دے دیں۔ ہاں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک بات ہے، مگر ہر بات کا، ہر معاملے کا دین میں ایک اپنا حصہ اور اپنا مقام ہوتا ہے۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا، وہ سائل کو 3000 والی ضرورت والے کو 6000 دے دیتے ہیں، تو وہ غربا میں بھی تو ایسا ہی کرتے تھے سیدنا عثمان پاک، ہم اس پر بات کر رہے ہیں اور وہ بات بھی آئے گی۔ لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کسی غریب کی دعوت کر دو، کسی مسکین کی دعوت کر دو، کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گوشہ زندگی کو اپنی سنت مطالعہ سے بہرہ یاب فرمایا ہے اور فیض یاب کیا ہے۔
सुन्नत का उसवा अता फरमाया है, अपने तरीके नबवी पर उम्मत को हिदायत के चराग जला के दिए हैं ताकि वो उसकी रोशनी में चलते जाएं और अपने मंजिल मुराद पर पहुंच जाएं, अपने मकसूद असली को पाले। तो इसलिए सरकार पाक की हयात तैयबा के जुमला मराहिल को हम जूजू मुताला करते हैं, और सहाबा पाक की चूंकि सीरत सरकार की सीरत पाक का अक्स है, तो उससे भी हमें वही हिदायत मिलती है जो सरकार की बारगाह से हमें मुयस्सर आती है, क्योंकि फैज़ असली तो सरकार पाक की ज़ाते पाक का ही है और ज़ाते अनवर का ही है, जो सहाबा पाक और खुसूसी तौर पे खुलाफाए राशिदीन के लिए जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी बारगाह से उम्मत को मुयस्सर आता है। दावत को कबूल फरमाया। फिर सरकार पाक का यह भी तरीका था कि आप पूछते थे कि मैं दावत में कितने बंदे साथ लेके हूं, एहतिमाम कितना है। यानी ये है कि वो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों की तबई और फितरी उनकी जो सलाहियत है उसको जहन में रखना। सिर्फ दावत पर ही ध्यान नहीं है, जो दावत दे रहा है उसके अहवाल पर भी ध्यान है। ये वो करम की निगाह है जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से अपनी उम्मत पर रखते हैं, रखते थे, रख रहे हैं और इंशाल्लाह रखते रहेंगे। तो जब ये पूछा कि कितना एहतिमाम, तो आगे भी तो उस्मान पाक है, फरमाया हुजूर आपकी वजह से अल्लाह ने बहुत करम किया है, तो जैसे जितने आप चाहें। सावजर है सहाबा पाक जो मुयस्सर थी, जितनी भी तादाद वो लेकर हजरत उस्मान पाक की बारगाह और आपके काशान अक़दस को फैज याब करने के लिए और उलूव मर्तबत से माला माल करने के लिए सरकार तशरीफ लेके गए। मगर कुर्बान जाए उस्मान, तेरी दावत कैसी है, तेरा एहतिमाम कैसा है, तेरा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा आका पाक को घर में बुलाना कैसा है, ये अल्लाह ने तुझे ही शान अता फरमाई है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर पाक के कदमैन शरीफैन को काउंट करते जाते हैं, कदम कदम को गिन रहे हैं। मेरे आका ने पीछे पलट के जो देखा तो पूछा, उस्मान गिनती कर रहे हो? जी या रसूलुल्लाह, मैं गिनती कर रहा हूं। किस चीज की गिनती कर रहे हो? आका आपके कदमैन शरीफैन की गिनती कर रहा हूं। फरमाया इस गिनती का क्या मकसद है, दावत से इसका क्या ताल्लुक है? फरमाया आका आज आपकी मैंने दावत की है, तो मैं नहीं चाहता कि हुजूर जब करम की बारिश फरमाएं तो फिर गोराबा अपने तौर पर जो उनके लिए मुफीद चीज है और उनका नफा है उससे फारिग रह जाएं या उससे महरूम रह जाएं। मैंने आज ये नियत की है, इरादा किया है कि हुजूर आपके जितने कदम मेरे घर पर आएंगे, मैं एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद करूंगा। और वो वाकयातन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलाम आजाद किया। दावत हो, दावत उस्मान पाक हो और सरकार पाक तशरीफ फरमा हूं, दावत आम भी सहाबा पाक में हो। और साफ ज़ाहिर है उसमें जुमला अजीम सहाबा किराम की सारे ही अजीम हस्तियां हैं, मगर मरातब के तौर पर भी देखा जाए तो उसमें बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां तशरीफ फरमा हैं, यानी अशरा मुबशरा उसमें हैं। और फिर अजीम सहाबा खुलाफाए राशिदीन के अलावा और भी बहुत सारे सहाबा किराम, तो मगर जो मकामात खासा के हामिल सहाबा पाक हैं वो भी अपनी शऊन खासा के साथ मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब खाना हज़रत उस्मान पाक ने बनाया तो वो खाना इतना पुरलुत्फ और पुरमजा था। मैं जानबूझ के पुरतकल्लुफ नहीं कह रहा, क्योंकि वो पुरतकल्लुफ तो था ही नहीं उस अंदाज का। इस अंदाज का तो हम कह सकते हैं मानवी तौर पर कि उसमें खास किस्म की मोहब्बत शामिल थी, खास किस्म की दिलचस्पी शामिल थी। हज़रत उस्मान पाक की कमिटमेंट का खास किस्म का मजहर था। वो दावत सारी की सारी हुजूर पाक से मोहब्बत का एक खास किस्म का नुक्ता कमाल और उरूज था। इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है, मगर मैं समझता हूं वो लफ्ज यहां नहीं लाना चाहिए था और ना ही मैं लेके आया। अगर उलमा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी बात भी नहीं है, मगर अल्फाज के चुनाव और एहतियात की बड़ी जरूरत होती है। सहाबा की बारगाह में तो और भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सहाबा पाक का तो तरीका खुद सरकार ने कहा है कि जो मेरे सहाबा के तरीके पर नहीं होगा उसको सुन्नत और अहले सुन्नत होने का फैजान नहीं मिलेगा। लिहाजा एहतियात की बहुत जरूरत है। और यहाँ पर यह भी वैसे उलमा तो जानते हैं, मगर अवाम अहले सुन्नत के भी अक्सर को इस बात का इल्म है। उलमा की मजलिस में बड़ी एहतियात से बोला जाता है, आलिम के सामने जबान की गिरफ्त जरूरी है। तो वो जो हस्तियां जिनकी बारगाह में अल्लाह पाक ने अपने महबूब के बराह रास्त जलवों की बरसात की, जिनके लिए उनकी बारगाह में बोलने के लिए तो बहुत ही ज्यादा एहतियात दर एहतियात की जरूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो खाना इतना पुरलुत्फ था, पुरमजा था और इतना वो खाना लजीज था कि जब हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा पलट के वापस आए तो आप अपनी रूटीन के मुताबिक जब किसी गहरी सोच में गुम होते थे
तो तकिया शरीफ लेकर हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तकिया शरीफ का सहारा लेकर खास अंदाज में चादर लेकर लेट जाते थे। सईदा पाक को पता चल जाता था कि हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा की कैफियत बदली बदली सी है और कुछ वकू पजीर हुआ है जिसका असर तबीयत पाक पर हुआ है, और मामूल के मुताबिक सईदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई हैं, दुख्तर रसूल पाक आई हैं, जिगर गोशा रसूल आई हैं और आके पूछती हैं, ए अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, क्या बात है, तबीयत के अंदर तब्दीली की कैफियत है और ये जो तबीयत में तगय्युर है ये मुझे पता है कि ऐसा किसी रिएक्शन की बुनियाद पर होता है, तो आपकी तबीयत में ये तब्दीली और तगय्युर मैं क्यों महसूस कर रहा हूं? मैं जानबूझ के फिक्रमंदी या किसी तरह की रिजर्वेशन के अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो उस्मान पाक ने फरमाया, ए दुख्तर रसूल, आप समझ तो गई हो, आपसे बड़ा कौन समझेगा? तुम्हें पता है आज उस्मान ने दावत की है। उस्मान पाक ने कहा, हाँ मुझे पता दावत की है, सारे सहाबा गए हैं, फरमा मुझे पता है, आका पाक खुद गए हैं, फरमा मुझे पता है। कहा तो तुम्हें यह भी पता चला वो दावत कैसी थी? फरमाया पता तो है ही, मगर आप मजीद बता दें, आप तो हो के आए हैं। फरमा इतनी पुरलुत्फ दावत तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, इतनी पुरलुत्फ दावत, ऐसी पुरलुत्फ दावत है। और फिर तुम्हें यह भी बताऊं कि उस्मान ने तो आज कमाल कर दी है, खाली दावत ही नहीं की है, हर कदम रसूल पाक के एक एक अदद और उसके नंबरिंग के मुताबिक गुलामों को आजाद किया है और गिन गिन के आजाद किया है। और मेरी तबीयत में ये बात आई है कि काश उस्मान जैसा अमल मैं भी करूं और मैं भी उस्मान जैसी दावत करूं, मगर जाहिरी हालात मेरे तो ऐसे नहीं हैं जो उस्मान के जाहिरी हालात हैं उस्मान पाक के। ये बात सुनी, सईदा पाक ने फरमाया, अली मेरे होते हुए आपकी तबीयत अकदस में ये जो एक रद्द अमल के तौर पर रश्क वाला रद्द अमल पैदा हुआ है, ये इसको मेरे होते हुए आपको नहीं होना चाहिए। फरमाया वो फातिमा कैसे? सईदा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आप भी जाएं, जाके हुजूर पाक की दावत करके आएं, इंशाअल्लाह हमारी दावत भी बहुत अच्छी दावत होगी। मैं अपने सुनने वालों को इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहूंगा, लोग कहाँ की कहानियां घर के ले आते हैं, किस जगह की कहानियां घर के ले आते हैं और कौन सा नया दीन और इस्लाम और फिक्र और बतौर खास अहले सुन्नत को देना चाहते हैं। इधर की पकड़ के इधर मिलाते हैं, उधर की पकड़ के इधर लेके आते हैं। उन लोगों का तो आपस में ताल्लुक ही इतना था। हमें इस बात में कहने में, और हमारा अकीदा है ये उन हस्तियों का बहुत बड़ा ऊंचा कमाल है, मगर हज़रत उस्मान पाक के अमल को अपनाने की तरगीब हजरत अली को किसी ने नहीं दी है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को खुद तरगीब आई है और तरगीब भी कैफियत रश्क में आई है और कैफियत रश्क की शान खास के साथ आई है। इजहार सईदा पाक से किया है। सईदा पाक ने भी ये तो नहीं कहा हमें क्या जरूरत है उस्मान पाक के एक अमल को फॉलो करने की, उस्मान पाक के एक अमल की वजह से अपना अमल मुतय्यन करने की। लोग कहाँ की बातें करते हैं। उनमें दूरियां नहीं थी, उनमें मोहब्बतें थी, उनमें मुसाफतें नहीं थी, उनमें कुर्बतों का माहौल था, उनमें नफरतों की कोई हवा तक भी नहीं थी, बल्कि वहां तो मोहब्बतें ही मोहब्बतें थी। मोहब्बतों के जाम चलते थे, सुबह शाम चलते थे। और ये उसका मुजारा है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को सईदा कायनात फरमाती हैं, फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं, मेरे सरताज आप जाइए, हुजूर पाक को दावत दे के आइए और इंशाल्लाह हम भी अच्छी दावत करेंगे। दावत करना हमें भी आता है, हम कर लेंगे। आप इस मामला में मुतफक्किर ना हूं। हज़रत अली मुर्तजा शेर खुदा को ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दुख्तर रसूल बोल रही थी, बदाए रसूल बोल रही थी, जिगर गोशा बतूल बोल रही थी, सरकार पाक की दुख्तर नेक अख्तर बोल रही थी, उम्मे हसनैन बोल रही थी, ज़ौजाए अली बोल रही थी। और उनको पता था कि जब फातिमा बोलती है तो फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बा मकसद बोलती है। बल मैं इस वाक़े पर ज्यादा नहीं रुकना चाहता, क्योंकि और भी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे सखावत के पहलू से जो फिर तिश्ना रह जाएंगे। इतनी बात अर्ज करते हुए मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन इस बात को जानते हैं, हज़रत अली मुर्तजा शेर खुदा ने वही दावत का अंदाज अपनाया, और जब दावत का अंदाज अपनाया सरकार को दावत दी। सरकार ने मामूल और रूटीन के मुताबिक पूछा कितने बंदे लेके आऊं। यानी ऐसा नहीं है कि हज़रत उस्मान से पूछा तो अपनी साहबजादी के घर वाले से नहीं पूछा, वहां भी पूछा कितने बंदे। उन्होंने कहा हुजूर जितनी आपकी मर्जी। हालांकि सरकार को सईदा पाक हज़रत उस्मान की भी उस मामला में तो हमारा अकीदा की बुनियाद पर, मगर ज़ाहरी अहवाल के मुताबिक बेटी का तो बिल्कुल ही सरकार को पता था। और घर एक दिन में भी आपकी तशरीफ आवरी होती, 2 बार 3 बार कई बार होती, एक बार तो जरूर होती।
तशरीफ आवरी काशाना फातिमिया में। तो इस एतबार से सरकार ने फिर भी पूछा कितने मेहमान, यानी कितनी गुंजाइश है। तो आपने फरमाया हुजूर जितने हो सके सार, क्योंकि वो ज़हन में बात ये थी ना कि तो उस्मान ने एक अमल किया, हमने उस अमल को कंटिन्यू करना है। तो सरकार ने फरमाया ठीक है तैयारी करो, हम आ जाते हैं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने, फिर मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, खाना पानी ऊपर रखा बर्तन में और खुद मुसल्ला लेके बैठ गई। और जब खाना सामने आया तो खाने की खुशबू ऐसी थी कि कभी जमीन पे ऐसे खाने की खुशबू किसी ने सूंघी भी नहीं थी, और किसी को सूंघने का मौका भी मुयस्सर नहीं आया था। तो साफ ज़ाहिर है फिर जब खाना से सारे लोग फारिग हुए, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, खुशबू क्या थी कि खुशबू के अलावा टेस्ट कैसा था, वो लुत्फ तो लुत्फ ही था जो लुत्फ उठाने वाले ही महसूस कर रहे थे। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को देखा तो बहुत खुश थे, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि खाना बड़े अच्छे तरीके से सर्व हो गया है, लोगों का ये अंदाज बता रहा है, उन्हें इतना पुरलुत्फ खाना कभी मुयस्सर नहीं आया है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हैं, सरकार की आंखों में आंसू हैं। सरकार ने पूछा अली इधर आओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहा आका आपको पता ही है क्यों खुश हूँ, दावत मेरी मर्जी के मुताबिक हो गई है। और इधर जब देखा तो सरकार की आंखों में आंसू थे। फरमाया आका आप खुश क्यों नहीं हैं, चेहरे आंखों में आंसू हैं। फरमाया नहीं, ये शुक्राने के आंसू हैं, ये जिब्राइल मेरे पास खड़ा है और ये बता रहा है कि खाना जिब्राइल लेके आया है, तूने जो तेरे जहन में बात आई थी उस बात को फातिमा ज़हरा ने मुसल्ले पर बैठकर रब से दुआ करके तेरी खुशी के लिए, फातिमा अपने लिए तो मांगती नहीं है ना, क्योंकि वो दुख्तर रसूल है, उन्होंने मांगना सीखा ही नहीं है और ना ही उन्हें आता है इस अंदाज से। अल्लाह की बारगाह से मांगती जरूर है मगर इस तरह की बात अपने लिए वो नहीं मांगती हैं। मगर फिर भी तेरी खातिर हजरत फातिमा ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की है और ये कहा है कि अली का दिल खुश होना चाहिए। तो इस एतबार से ये खाना वहां से आया है। और सुन, अब जो मैं जाऊंगा ना तो मेरे कदम भी गिनना, क्योंकि हर कदम के बदले 1000 बंदा अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह से दोजख से आजाद करके जन्नत में दखूल फरमाएगा। तो इस पर ये हजरत उस्मान की दावत और फिर हज़रत अली मुर्तजा शेर खुदा की दावत, तो दावत अपने अपने कमाल पे दोनों दावतों की अजीम शान है। लेकिन आप ये देखें कि आपस में जो मोहब्बत का रिश्ता है दोनों अमीरुल मोमिनीन का और दोनों खुलाफाए राशिदीन में से हस्तियों का, वो किस अंदाज का प्यार, मोहब्बत और अकीदत एक दूसरे के साथ और बाहमी दिलचस्पी और बाहमी एक दूसरे के अमल को अपनाने, फॉलो करने और सरकार की बारगाह के साथ उसको मुतमस्सिक करने के साथ कैसा था। फिर अब आप ये भी जानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हज़रत उस्मान गनी के ये शान थी कि आपने गुलाम आजाद करने में बहुत ज्यादा फराख दिली से आपको सादत मुयस्सर आई। और हदीस पाक में बाकायदा इस पर उन्वान है, मनाकिब उस्मानी में ये उन्वान आता है, टॉपिक है, हेडलाइंस में ये एक हेडिंग है, इत्क़ुहू लिर्रिक़ाब, कि उनका गुलामों को आजाद करना। और हर जुमा पर गुलाम आजाद फरमाते। ये जो हर की बात है ना, हर जुमा पर हजरत उस्मान पाक गुलाम आजाद करते थे और हर दूसरे दिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद एक मुकम्मल फरमाते थे, ये आपकी शान थी। और हर दूसरे दिन आप मुसलसल रोजा रखते थे। ये 3 शानें हर के साथ आपके हिस्सा खास में आई हैं और इस अंदाज से आपने जिंदगी भर इसको निभाया है और इस पर अमल किया है। और फिर सामीन मोहतरम, आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम से गुजरे हैं, मदीना शरीफ के करीब बाहर से मुज़ाफात में गए हैं, पलट के वापस आए तो उस्मान से फरमाने लगे, उस्मान इधर से जिधर से मैं आया हूं तू भी जाना और देखना कि वहां एक यहूदी अपने माल मवेशियों के बैठने का और उनके बांधने का सामान करता है, वो जगह बहुत प्यारी है, उस जगह को देख के आना। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इधर से सरकार का फरमान सुना और साथ ही उस जगह को देखने चले गए और गए और उस जगह को देखकर वापस पलट के आए। सरकार ने पूछा कहां गए थे? कहा का आपने फरमाया था देखना, तो आपकी बात हो तो हम उसको पेंडिंग में तो रखते ही नहीं है ना, आपका फरमान हो गया उस्मान के लिए तो फौरी तौर पे उस पर अमल जरूरी था। हुजूर मैं तो देख के आ गया। फरमाया अच्छा तो फिर क्या किया? हुजूर देख भी लिया, खरीद भी लिया। कहा मैंने तो कहा था देख के आना। फरमाया हुजूर आपने फरमाया था देख के आना, लेकिन आपने ये भी तो फरमाया था ना जगह अच्छी है, तो जो जगह मेरे आका को पसंद आए ये कैसे हो सकता है? उस्मान उस जगह का सौदा करके ना आए। उस्मान तिजारत जो करता है वो आपके इन्हीं खुशियों के लिए ही तो करता है ना, कि मेरे आका के मिजाज में जो आए उसे पूरा कर दिया जाए। और नाज़रीन गिरामी ऐसा ही हुआ, तो उस्मान गनी ने उस मैदान को खरीद लिया
वो मैदान अब सहाबा पाक के जंग के मौके पर मवेशी बांधने के लिए, घोड़े बांधने के लिए, ऊंट बांधने के लिए इस्तेमाल होता था, और आज उस मैदान का नाम जन्नतुल बकी है। यानी जन्नतुल बकी, इस पर तो फिर बहुत सारी लंबी बात हो जाएगी, बकी पर तफसील, फिर और भी उस पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुए उस मकाम और जगह के लिए। मगर एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि वो जो जन्नत का लफ्ज आया है उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा उस जगह का, कि जिस जगह या मैदान के लिए जन्नत का लफ्ज आ गया, और फिर उसमें आराम फरमा होंगी बड़ी बड़ी हस्तियां आराम फरमा हुई। हज़रत उस्मान बिन मज़ून आराम फरमा हुए, सईदा कायनात उसमें आराम फरमा है, सईदा आयशा पाक उसमें आराम फरमा है, और फिर इसी तरीका से हजरत इमाम हसन मुज्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा पाक वहां पे तशरीफ, और बड़ी बड़ी अजीब मर्तबत शख्सियात वहां पे तशरीफ फरमा है। और फिर आपने देखा कि वो मकाम और वो जगह लोग तो बात कर देते हैं मगर पता भी नहीं होता कि बात है क्या। बात करने से पहले बात होने का पता होना जरूरी होता है। मगर वो क्या कहते हैं, सितम जरीफी ये है कि वो हमें है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते ही नहीं वफा क्या है, बातें वो करते हैं जिनको पता ही नहीं बात क्या है। हज़रत उस्मान पाक का जन्नतुल बकी का वक्फ किया हुआ सिलसिला, उसमें कितने लोगों को मुशर्रफ किया इस अंदाज से कि सईदा पाक ने भी उसको कबूल फरमाया अपने जिस्म जसद अक़दस और जिस्म अतहर और बदन मुक़द्दस के लिए। वहां आप तशरीफ फरमा हैं और हमेशा हमेशा के लिए वहां आप तशरीफ फरमा हैं और अपना नूर कब्र के अंदर कायनात को अता फरमा रही हैं। और हसन पाक, इमाम हसन मुज्तबा और भी दीगर शख्सियत, मगर ये मैं जानबूझ के बात कर रहा हूं कि उस्मान पाक का माल इस्तेमाल हुआ है अहले बैत अतहार के लिए और खानवादा रसूल पाक के नुफूस कुदसिया के लिए, और उन्होंने कबूल किया है, उन्होंने इसको कबूल किया है। और ये तो उस्मान पाक के हिस्से की सादत है कि तो उस्मान पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अहम उमूर में अपना माल हस्तियों के लिए पेश किया है, मुकद्दस घराने के लिए पेश किया है, सरकार के काशाना के लिए पेश किया है, जाते पाक रसूल के लिए पेश किया है, और फिर पेश ही नहीं किया, वो कबूल हुआ है। मस्जिद नबवी की जब तोसी की जरूरत आई है तो सरकार पाक ने किसको कहा है? सरकार पाक ने उस्मान पाक को कहा है कि उस्मान, मस्जिद नबवी की तोसी की जरूरत है, मैं चाहता हूं इसको वसी कर दिया जाए। कुर्बान जाए उस्मान तेरी भी मवद्दत और मोहब्बत पर और रसूल पाक की बारगाह में मोहब्बत की इंतहाई उरूज वाली कैफियत पर। उस्मान ने दूसरी बात नहीं की, कहा आका फौरी तौर पे लेके सरकार के हवाले कर दिया। मस्जिद नबवी की तोसी का सारा इंतजाम हजरत उस्मान पाक ने किया है। और फिर जैसे हमसे पहले हमारे मोहतरम मकाम शाह साहब बोल्टन से इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने बात कर दी बीरे रूमा की, मगर वो बीरे रूमा जो था वो जिस यहूदी के पास था उसने वो देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक ही कुआं था और मुसलमानों को बतौर खास दिक्कत थी मीठे पानी के लिए, तो वो नहीं दे रहा था। तो सरकार ने जब ये ऐलान किया, जैसे शाह साहब ने फरमाया, ऐलान किया कि जन्नत जिसको चाहिए वो बड़े रूमा खरीदे, जन्नत ले ले। तो उस्मान पाक वहां गए और उससे बात की, तो उसने कहा कि ये तो ठीक है मैं दे देता हूं मगर मेरी मुंह मांगी कीमत होगी। हज़रत उस्मान पाक ने फरमाया हाँ बिल्कुल मुंह मांगी कीमत तेरी, ठीक है ले लो। उसने कहा दूसरी शर्त ये है कि मैं एक दिन दूंगा, एक दिन नहीं दूंगा, एक दिन मैं रखूंगा, आप एक दिन इस्तेमाल कर सकते हैं कुएं का पानी। तो उस्मान पाक ने फरमाया तेरी ये शर्त भी कबूल है। तो उसने यानी जितना उसकी कीमत थी उससे डबल कीमत ली, डबल कीमत, बल्कि डबल से भी 4-5 गुना ज्यादा कीमत ली उसने। तो जब 4-5 गुना उसने कीमत ली तो आपने वो कीमत दे दी और बिल्कुल बार्गेन किया ही नहीं है, सवाल भी नहीं किया कि इतनी ऊंची कीमत, क्योंकि कह जो दिया था कि मुंह मांगी कीमत। उसने कीमत ले ली और साथ कहने लगा उस्मान मैं जानता हूं आप मंजे हुए ताजिर हो, आप सौदा बड़ा सोच समझ के करते हो, बिजनेस के अंदर तेरा कोई सानी नहीं है, तो तू कैसा बिजनेसमैन है कि जाहिरी तौर पे घाटे का सौदा है। आपने फरमाया नहीं तू नहीं समझता, जहां मेरा सौदा है मेरे लिए नफे का सौदा है। और तूने तो इतना कहा है ना, जितना तूने अब कहा है ना इससे 40 गुना का मैं बंदोबस्त करके आया था। तू जिस गुना पर पहुंचा है
उस गुना से 40 गुना का बंदोबस्त करके मैं आया था, मगर चूंकि तूने वो जितनी छलांग लगा सकता था, साफ ज़ाहिर है तू गया तो सही अनरीजनेबल कैफियत और लिमिट तक, मगर फिर भी तूने सोचना तो था ही ना आखिर क्या है। लेकिन मैं सोच के नहीं आया हूं, मैं तो उससे 40 गुना ज्यादा का इंतजाम करके आया हूं। और फिर मेरे नाजरीन मोहतरम, सामीन ग्रामी कदर, आप ये भी जानते हैं कि वो वाकया किसने से नहीं सुना, हर एक ने सुना है। वो वाकया जिसको हदीस में ये इस अंदाज से, इस टाइटल से बयान किया गया, बज़लुहु लिइताम अन्नास फी ज़मन अल-कहत, कहत के जमाना में जनाब उस्मान पाक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो माल तकसीम किया और मुसलमानों के लिए वक्फ किया, सिद्दीक़ पाक के बारगाह में लोग तशरीफ लाए थे, कहत का सवाल किया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की, और इसी तरीका से मुख्तलिफ जमानों में कहत की कैफियत रही। मगर इस मौका पर कहत बड़ी सख्त कैफियत में ये कहत था, तो इस मौका पर लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में थे। तो इसी मुश्किल के दौरान आपका बहुत बड़ा काफिला सामान लेकर आया, वो सामान जिसकी जरूरत थी। जो बिजनेस लोग करते हैं उनको पता होता है कि जिस माल की शॉर्टेज हो, जब वो मुयस्सर आ जाए तो ताजर लोग उससे कितना पैसा बनाते हैं, उनका ज्यादा हिसाब शरई तौर पे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर जो एक जमाने की बात मैं बता रहा हूँ, रीजनेबल प्रॉफिट तो फिर भी लेने की एक इजाजत है। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो प्रॉफिट उन्होंने पेश किया, यानी 5 गुना तक गए। तो इस पर उस्मान ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि मैंने ये माल इससे भी कई गुना ज्यादा। तो उन्होंने कहा बताएं तो सही, मदीना में कौन ऐसा ताजर है जो आपको इससे ज्यादा देगा? तो आपने फरमाया कि 10 टाइम मोर तो मुझे है ही ना इस दुनिया में, और 70 गुना अल्लाह पाक का वादा है मेरा आखिरत का, लिहाजा मैंने ये सारा माल जुमला इंसानों के लिए वक्फ कर दिया है, और मैंने ये पेश कर दिया है इस माल को। और ये माल अब मैंने अपने लिए नहीं रखा, ये मदीना शरीफ के रहने वाले लोगों के लिए है। और फिर आप अंदाजा करें कि वो मदीना जिसके लिए सरकार फरमाए कि जो मेरे अहले मदीना को तंग करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको पानी में नमक तरह पिघला देगा। तो जो उन मदीना वालों को खुश कर रहा है, उसको अल्लाह पाक की बारगाह से उस अजीम हस्ती को कितनी बड़ी सादतें मुयस्सर आ रही हैं। तो फिर वो बात जो आपने अक्सर उलमा से यकीनन सुनी है, और चूंकि मेरा टॉपिक है तो साफ ज़ाहिर मैंने उसको टच थोड़ा सा देना है, और वो ये कि वो जैशे उसरा जो तंगी वाला लश्कर है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो सबसे ज्यादा मुश्किल हालात वाला फौजी मुहिम थी, जिसको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अंदाज से सरकार की बारगाह में पूरा किया। और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए 3 बार अपील फरमाई, और चौथी बार जब अपील फरमाई तो वो 3 बार अपील पर लब्बैक कहने वाले अपनी शान में हज़रत उस्मान पाक ही थे, और चौथी बार अपील पर लब्बैक कहने वाले भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये हदीस पाक हज़रत अब्दुर रहमान बिन खब्बाब से मरवी है। फरमाते हैं शहीदतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यहुस्सु अला जैशिल उसरति फकाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फक़ाला या रसूल अल्लाह अलैया मिअतु बईरिन बिअहलासिहा व अक्ताबिहा फी सबीलिल्लाह। सरकार ने जब ऐलान फरमाया ना और तरगीब दिलाई, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हुजूर मैं 100 ऊंट देने का ऐलान करता हूं, खाली सामाने सफर देने का ऐलान नहीं करता। वो ऊंट इस अंदाज से देता हूं कि ऊंट भी दूंगा, साथ असला भी दूंगा, ऊंट का कजावा और पालान भी दूंगा, और फिर उस पर जितना असला चाहिए वो भी साथ दूंगा, और उस फौजी का खर्चा और तनख्वाह भी दूंगा, और उसके खानदान और घर वालों के लिए वापस आने तक के अखराजात भी दूंगा। जब ये बात की और 100 ऊंट का ऐलान किया, तो उसके बाद सुम्मा हद्दा अलल जैशी फकामा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तरगीब दिलाई, दोबारा अपील फरमाई, और जब दोबारा तरगीब दिलाई तो फकाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैया बिअता बईरिन बिअहलासिहा व अक्ताबिहा फी सबीलिल्लाह। हुजूर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मैं 200 ऊंट पेश करता हूं। उसी तरीका से पालान के साथ, उसकी जरूरियात के साथ, असला के साथ, जो सोल्जर है उसकी जरूरियात और तनख्वाह और घर के खर्चा के साथ हुजूर मैं 200 ऊंट पेश करता हूं। सुम्मा हद्दा, फिर तीसरी बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपील फरमाई और तरगीब दिलाई। अलल जैश फकामा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फक़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैया सलासु मिअत बईरिन बिअहलासिहा व अक्ताबिहा फी सबीलिल्लाह। हुजूर मैं 300 ऊंट पेश करता हूं। तो गोया 600 हो गया, 300 ऊंट पेश करता हूं हुजूर। और वो उसी तरीका से अपने जुमला साजो सामान, फौजी के वर्दी समेत, खर्चे समेत, उसके घर के खर्चे और तनख्वाह समेत पेश करता हूं फी सबीलिल्लाह। फ़अना रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रावी कहते हैं मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यंज़िलु अनिल मिंबरे वहुव यक़ूल, आप मिंबर से नीचे तशरीफ ला रहे थे, अपील पूरी हो चुकी थी, जैशे उसरा की उसरत खत्म हो चुकी थी, सामान का इत्माम हो गया था, सरकार पाक जो चाह रहे थे वो अपनी टारगेट के करीब पहुंच गया था। और फिर फरमाते हैं रावी कि हजरत खब्बाब कहते हैं कि मैंने सरकार को देखा मिंबर से उतर रहे हैं, वह यकूल, और फरमा रहे हैं मा अला उस्मान मा अमिला बाद हाज़िही, आज के बाद उस्मान जो कुछ भी करे उसकी कोई गिरफ्त नहीं है। आज के बाद उस, और फिर फरमाया मा अला उस्मान मा अमिला बाद हाज़िही, उस्मान आज के बाद जो कुछ भी करे उसके किसी अमल पर कोई गिरफ्त नहीं है। कुर्बान जाए उस्मान पाक की शान पर। ये नजराने कबूल देने भी बहुत बड़े एजाज की बात है, मगर इस अंदाज से कबूलियत बालिसान ज़ात पाक मुस्तफ़ा का मुजदा जहां फिजा सुनाया जाना, यह भी हजरत उस्मान पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान पाक का कमाल खास है कि आपने 2 मरतबा इस रिवायत में, और दूसरी रिवायत में यह है कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा दर्रा उस्मान मा आमिलहु, आज के बाद उस्मान बाद हाज़ल यौम या बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो अमल भी करता रहे उस्मान का कोई अमल उसे नुकसान नहीं देगा। यानी ये बात है कि हज़रत उस्मान पाक का अमल तो वैसे ही ऐसा कैसे हो जाना था कि सरकार की वो अजीम कुर्बतों के नतीजे में उस्मान पाक का किरदार तश्कील पाया था, मगर सरकार पाक ने मोतरजीन के मुंह कयामत तक के लिए बंद कर दिए और हजरत उस्मान पाक के खिलाफ चलने वाले कलम को सरकार ने अपने इरशाद अक़दस के तोड़ के रख दिया और आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन की तरफ अंगुश्त एतराज उठाने वालों की अंगुश्त के इशारे को खत्म करके रख दिया कि मेरे उस्मान की तरफ किसी का इशारा नहीं होना चाहिए और किसी को कमी और नक्स वाली सोच, नजरिया या जबान के साथ बिल्कुल अपनी जबान को हरकत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने गारंटी दे दी उस्मान जो अमल भी करेगा उसको कोई अमल इस अंदाज से नहीं कर सकता। फिर सरकार ने फरमाया, दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊंट आ गए हैं, साजो सामान आ गया है, असला आ गया है, घर के खर्चे आ गए फौजियों के, रास्ते का साजो सामान और ज़ादे राह आ गया है, मगर पैसों की भी कुछ जरूरत है। कुर्बान जाए उस्मान तेरी शान पर। अति उस्मान फरमाते हैं जितना माल सरकार को मकसूद था उस मकसूदा माल में से मेरे पास 200 कम था, लेकिन मैंने 200 को मैनेज किया और मैनेज करके मैंने उसको पूरा किया। और मैंने जब अपने बिजनेस के तौर पर अपने पिछले वाले लगाए हुए पैसे माल को देखा तो मैं इस बात में इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके बाद अगले कई महीनों तक मेरे पास कोई ऐसा माल नहीं है जिस माल की बुनियाद पर मुझे नफा हासिल हो जाए और मैं पूरा करूं, मगर मैंने अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर वो रहने वाली रकम को भी मैनेज किया। और फिर हज़रत अब्दुर रहमान बिन समुरा कहते हैं कि इसी हाल में जा उस्मानो, फिर हज़रत उस्मान तशरीफ लेके आए इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फ दीनारिन, 1000 दीनार आपके पास था, फी कुम में ही, और आपने उसको गुठली में रखा हुआ था, ही न जहाजा जैशल उसराते फयनसुरुहा फी हिजरेही, आप वो गुठली को लेकर के वो अशरफियों की गुठली थी,
1000 کی وہ لے کر آئے اور ساری کی ساری گٹھلی کو کیا کیا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَيَنْثُرُهَا فِي حِجْرِهِ، حضور پاک کی گود مبارک میں اس کو رکھ دیا کہ عثمان تیرا کمال ہے، ادھر بھی تیرا کمال، ادھر بھی تیرا کمال، جیسے اسرا کی کیفیات، ادھر اسرا ہے، اور عثمان کا ایک ایک انگ انگ جسم اقدس کا بتا رہا ہے اسرا تو ہے، پر آقا تیرے کرم سے عثمان اس اسرا کو یسرا کر دے گا۔ حضور تنگی تو ضرور ہے، مگر آج عثمان آپ کی بارگاہ میں ہر تنگی کو یمنا بنا دے گا، اور عثمان پاک نے اسرا کو یسرا بنا دیا اور یمنا کو یمنا کی کیفیات سے مالا مال کر دیا، اس انداز سے کہ فراوانی کر دی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں راوی، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان پاک نے وہ مال حضور پاک کی گود پاک میں رکھا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، قال عبد الرحمن فرعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم یقلبھا، اس مال کو یوں قلب کرتے تھے، یعنی لوٹ پوٹ کرتے تھے۔ اب اس کو تو سارے احباب جانتے ہیں، عام لوگ بھی جانتے ہیں، قلب کا معنی تو سنا ہی ہے، قلب یقلبو سے، یقلبھا، اس کو الٹ پٹ کر رہے تھے، بار بار پکڑتے تھے۔ وہ آقا جن کو مال سے محبت نہیں ہے، جن کو مال سے دلچسپی نہیں ہے، جو دنیاوی مال سے ترغیب رکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ دنیا کو بھی بتایا ہے، اور یہ بتایا نہیں ہے دکھایا بھی ہے، مال سے میرے آقا کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، مگر قربان جائیں آقا عثمان پاک کی عظمت پر کہ آقا اپنے عثمان کی دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، قبولیت کا مجدہ جاں فضا سنانے کے لیے، عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے، عثمان کا دنیا کو بتانے کے لیے، عثمان کی قبولیت کا چرچا کرنے کے لیے، عثمان کے انفاق کا اعلان کرنے کے لیے، عثمان کے بذلہ کی کیفیات دنیا پر رحمت بنا کر ایک صاحبان کی صورت میں دینے کے لیے میرے آقا اس کو یقلب فرما رہے ہیں، تکلیف فرما رہے ہیں، اس کی فی ہجرہ اپنی گود میں لوٹ پوٹ کر رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں ما درہ عثمانہ ما عامل بعد اليوم، اور آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے، عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ راوی کہتے ہیں 2 مرتبہ سرکار نے اس کو فرمایا، اور پھر فرما کر سرکار کے چہرے پر یہ عجیب قسم کی کیفیات تھی، خوشی کے آثار تھے، اور پھر حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا فرمائی۔ معزز ناظرین و سامعین گرامی قدر، یہ وہ شانیں ہیں جناب عثمان پاک کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان خاص کے ساتھ مالا مال کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے علماء نے بڑے محبت بھرے انداز میں اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کیا۔ آج کے اس پروگرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شانیں ایسی ہیں جن میں ان کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ اپنا ہاتھ سرکار کا ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دینا، بیت ساروں سے حضور پاک سے لے کر تمام صحابہ سمیت تنہا ایک شخص کے لیے بیت پوری کائنات صحابہ میں اگر کسی سے لی ہے تو سرکار نے جناب عثمان پاک سے لی ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میں یقیناً بڑے کھلے دل سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دعائیہ کلمات تو کسی کے بھی ہوں اپنے علاوہ تو وہ باعث فضیلت ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے میزبان محترم کو اور ان کے میزبان محترم کو جو اس طرح کے پروگرام اہل سنت کے عوام و خواص کے لیے پیش کرتے ہیں، مزید توانائیاں عطا فرمائے۔ اہل سنت کا یہ گلشن ہمیشہ پر بہار رہے، اور اس کے پھولوں اور پھلوں کی خوشبو سے اور ان سے تمتع سے ہمیشہ اہل سنت اور اہل عقائد حق و صحیحہ ہمیشہ مالا مال ہوتے رہیں، اور فکر رضویت کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ بام عروج پر ہم دیکھتے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔